کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، کوئی فون کاٹ کر نہیں بھاگے گا۔ جی منظور یہ نہیں کہ 1 منٹ بعد فون کاٹ کے ریکارڈنگ ڈالنا شروع کر دو، ایسا نہیں، گفتگو مکمل کر دو پھر۔ جی فون آپ ہی کاٹنا، چلو ٹھیک ہے۔ شارق اپنا دعویٰ بتاؤ، تمہارا دعویٰ کیا ہے کہ کیا مشرکین مکہ جو تھے ان کا اور ہمارا عمل سیم ہے؟ وہ نیک لوگوں کو پکارا کرتے تھے اور انہی نیک لوگوں کو پکارنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مشرک کہا۔ ٹھیک سے سمجھ لو، وہ نیک لوگوں کو پکارا کرتے تھے، کیا انہی کو پکارنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مشرک کہا؟ جی ٹھیک۔ سامعین کرام دیکھیں، میں اپنا ٹرم میں بولنا شروع کر رہا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ آئے گا اور اس کے بعد امن بھائی اپنا جواب دعویٰ دیں گے، اس کے بعد ہم دونوں اپنا اپنا بات کریں گے، ٹھیک ہے نا امن بھائی؟ پھر آپ مجھ سے تنقیات چاہیں تو لے لیں، پھر میں آپ سے تنقیات چاہیں تو لے، ٹھیک ہے نا؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مشرکین مکہ اور حنفی دیوبندی بریلوی دونوں کا عمل اس بنا پر سیم ہے کہ وہ نیک لوگوں کو پکارتے، اللہ کے یہاں سفارشی بناتے۔ اللہ نے اس کو شیطان کی عبادت کہا، نہ کہ نیک لوگوں کی۔ اچھا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ مطلب تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کو پکارتے تھے اور اللہ نے اس کو شیطان کی عبادت کہا، نہ کہ نیک لوگوں کی۔ نہ کہ نیک لوگوں کی۔ تو یوسف بھائی، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کو پکارتے تھے اور عبادت شیطان کی ہوتی تھی۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جیسے کہ ہم نے آم کھایا اور ہمارے پیٹ میں کیلا پہنچ گیا۔ اچھا رکو ابھی اور مطلب آگے بڑھتے ہیں۔ تو جیسے کہ شارق بھائی اس کو تھوڑا واضح کریں کہ جیسے کہ دعویٰ پہلے پیش کر میں لیں۔ تنقید کر رہا ہوں، تنقید کر رہا ہوں نا میں۔ امن بھائی اپنا شارق بھائی، دعوے پر تنقید ہوتی ہے، نہیں، جواب دعویٰ جب آ جائے نا تب پھر سمجھ میں آئے نا کہ ہم کو کہاں پر جو ہے جھگڑا کرنا ہے آپس میں۔ سنو تو صحیح، میں تنقید کر رہا ہوں آپ کے دعوے پہ، صحیح ہے؟ امن بھائی سنو میں کیا کر رہا ہوں؟ ارے شارق بھائی سن لو نا، ابھی تم میرے بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ ارے سن تو لو میرے پیارے بھائی، میں یہ بول رہا ہوں کہ جب آپ کا جواب دعویٰ آ جائے کہ نہیں آپ کا عمل ایسا نہیں ہے، پہلے تم دعویٰ کرو گے تو تمہارا دعویٰ مکمل کرنے کے لیے مجھے تنقید تو کرنا پڑے گی نا، پوچھنا تو پڑے گا نا۔ جو دعویٰ کیا ہے امن بھائی، میں نے جو دعویٰ کیا ہے، آپ کو اس پر کچھ دقت ہوگی تو آپ مجھ سے پوچھ لینا۔ وہی پوچھ رہا ہوں، آپ کا دعویٰ تو سمجھ میں آئے کہ نہیں، پہلے تمہارا دعویٰ تو مکمل ہو جائے تبھی تو میرا جواب دعویٰ آئے گا۔ سیدھی بات، ہاں ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ مان لو ہم نے آم کھایا تو ہمارے پیٹ میں کبھی کیلا پہنچتا ہے؟ تو ٹھیک اسی ترکیب سے اگر کوئی شخص مان لو اگر پتھر کی عبادت کرے گا تو وہ پتھر ہی کی تو عبادت ہوگی، نہ کہ شارق کی ہوگی، نہ کسی اور چیز کی ہوگی، نہ پیڑ کی ہوگی، پتھر ہی کی ہوگی۔ ٹھیک اسی ترکیب سے اگر کوئی شخص نیک لوگوں کی عبادت کرے گا تو وہ نیک لوگوں ہی کی تو ہوگی، شیطان کی کیوں ہوگی؟ اس کی ذرا وضاحت کر دو۔ امن بھائی نے کہا کہ کیلا آم، یہ کیلا اور آم اسلام میں نہیں چلتا ہے، اسلام میں چلتا ہے ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، ٹھیک ہے نا؟ اسلام میں یہ چلتا ہے، کیلا سیب کا فلسفہ اور دھرم میں چلتا ہے، ہمارے دھرم میں نہیں چلتا ہے۔ میرا جو دھرم ہے، آپ کا کیا دھرم ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، میرا جو دھرم اسلام ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی دلیل ہونی چاہیے، وہ بھی برہان۔ آپ نے کہا کہ شیطان کی عبادت ہوگی کہ نیک لوگوں کی بات ہے، کہ میرا دعویٰ ہی اسی پر محمول ہے بھائی۔ میں اپنے دعوے پر دلیل دوں گا کہ جس نے جو ہے دنیا سے گئے لوگوں کو پکارا رب کے یہاں سفارشی بنانے کے لیے، اس نے گویا کی شیطان کی عبادت کی، اس بندے کی بات نہیں کی، ایسا اللہ نے کہا۔ اللہ نے کہا، سنو پہلے تو بولنے دیجیے نا بھائی جان، پھر بول رہے ہیں ایک منٹ
सुन तो लो, भाई अभी मुझको पहले दलील पूरी की बात बात सुननी नहीं चल चाहिए। रही है शारिक, दलील की नहीं चल रही। मैं कह रहा हूँ कि नेक लोगों को पुकारा इबादत शैतान की हो गई, ठीक है। तो मतलब ये तो वही चीज हुई ना कि जैसे किसी ने आम खाया तो उसके पेट में केला पहुंच गया, या फिर केला खाया तो उसके पेट में आम पहुंच गया, ऐसा तो नहीं होता देखिए ना। सुन लो वो अल्लाह ताला की बात है सुन ना। लो पहले, मिसाल है ये, अल्लाह मिसाल ताला है की ये। मिसाल से और बात समझ में अल्हम्दुलिल्लाह आती है, हमारे साबित नहीं मजहब होती है। में आम और केला ये सब जायज है, ये मत कहो कि हमारे मजहब में ये है ही नहीं, ये भी झूठ बांधा तुमने। मैंने आम और मैं ये केला कह रहा हूँ, जिस मेरे तरह बीच में मिसाल मत आप दे बोलो रहे हैं वो यार, जायज नहीं है। मेरे बीच में मत बोलो। तो अच्छा, मैं मेरे ये से क्या कह बोले रहा हूँ हाँ। कि अगर कोई शख्स, तो जैसे आप कि ऐसा दावा पेश करें सुन ना तो लो भैया, अमन भाई। सुन तो लो, अगर कोई शख्स पत्थर को पूजता है तो वो पत्थर ही की तो इबादत लिखी जाएगी। मान लो अगर कोई शख्स पेड़ को पूजता है तो पेड़ ही की तो लिखी जाएगी, ना कि किसी और चीज की। अगर कोई पेड़ को पूज रहा है तो घर की थोड़ी लिखी जाएगी, पेड़ ही की लिखी जाएगी। कोई घर को पूज रहा है तो पेड़ की लिखी जाए, ऐसा नहीं हो सकता, घर ही की लिखी जाएगी। तो कोई शख्स अगर नेक लोगों को पुकारेगा, उनकी इबादत करेगा, तो फिर नेक लोगों की लिखी जाएगी शैतान की को लिखी जाएगी। इसको जरा वजाहत करो। और एक चीज और यूसुफ भाई, इन्होंने एक झूठ बोला है कि अल्लाह ने कहा है कि नेक लोगों को इबादत करते हैं और ये इबादत शैतान की हो रही है, ये बात अल्लाह ने ये झूठ कही है, है। ये अल्लाह पे झूठ बांधा है। माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, दुनिया का बदतरीन झूठ। चलो इसकी वजाहत करो अब। मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं जब दलील दूं और दलील मेरे दावे पर कायम और दायम नहीं हो, तब आप इस बात को बोल सकते हैं कि मैंने झूठ बोला। आप तो इस बात पर इस बात को आप अपने दावे में पेश कर रहे हैं ना कि अल्लाह ताला ने जो बात बोली है कि और वो शैतान ऐसा सरकस को है ही पुकारते नहीं हैं। कुरान और हदीस में कहीं भी। चले ना भाई, तो मैं तेरे के मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ तो एक्सप्लेन करो, क्यों बोल रहे हैं मेरे बीच में आप? एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो। तो रुको कहने तो भाई, बोलने दे। ये तो भाई ये तो अपने दावे में आएगी ना। दावे में आएगी एक्सप्लेन। अरे जो दावा मैंने पेश किया है उसकी उसकी दलील में आएगी। भाई मैंने तो वजाहत कर दी पूरी बात की कि दर हकीकत जो अल्लाह के बंदों को पुकारता है, सिफारसी बनाता है दुनिया से गए लोगों को, वो शैतान की इबादत करता है, ऐसा अल्लाह ने कहा है। ये तो मेरा दावा ही है इसी बात पर। भाई मैं जब दावा कर रहा हूँ किसी बात पर तो जाहिर सी बात है मेरे पास कुछ ना कुछ तो है। आप भी दावा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ ना कुछ होगा, या फिर कोई पागल ही होगा जो दावा करे उसके पास कुछ ना हो, ना कुछ ना हो। ऐसा ही होता है, तो वहाबी फिर आप बोल देवबंदियों रहे के हैं, पास कुछ नहीं होता। फिर आप बोल रहे हैं नहीं बात हो पाएगा यूसुफ भाई, बात नहीं हो पाएगा तुम। बोलो बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ मेरे भाई, अब बात को बढ़ाया जाए, अब अपना जवाब दावा पेश करें, फिर मैं अपनी दलील को लगाता हूँ, आप उसका इनकार करते चले। मुझे समझ में तो चाहे कि मुझे कहाँ पर आपकी बात कॉन्ट्रैक्ट मेरी और आपकी बात टकरा कहाँ पर रही है जहाँ मुझको उस बात पर दलील पेश करनी है। अगर आप मेरी बात को मान ले तो मुझको दलील पेश करने की जरूरत ना पड़े, और अगर आप ना माने तो मुझको दलील पेश करने की जरूरत पड़े। समझ में तो आई कहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है हमने और आप में। मैंने अपना दावा पेश किया, आप अपना जवाब दावा दें मेरे दोस्त, और बात को बढ़ाएं। ठीक है, आप खामोश रहो। सबसे पहली बात यह है कि अभी तुम्हारे दावे पे तनकी हो रही थी, तनकी ये हो रही थी कि इसको समझाओ हमें कि मतलब कोई नेक इंसान को पुकारे तो शैतान की इबादत कैसे हो रही है, नेकी इंसान की होगी। जैसे कि कोई पत्थर को पुकारे या पूजे तो पत्थर ही की इबादत होगी, ना कि दरख्त की होगी। घर की इबादत करेगा तो घर की होगी, ना कि पेड़ की होगी। पेड़ की करेगा तो पेड़ की होगी, ना घर की होगी। खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। तो फिर कह रहे हो कि फिर तो रिपीट पे रिपीट कर रहे हैं, बात को खामोश आगे नहीं बढ़ा भाई, रहे। खामोश तो रहो। अरे खामोश रहो, बीच में क्यों बोल रहे हो? तो फिर तुमने क्या कहा कि नहीं मेरे दावे पे दलील है, ये बात अल्लाह ने कही है कि नेक लोगों की इबादत करेंगे करते हैं तो शैतान की होती है। माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत पे बांधा बहुत ही बड़ा झूठ। तो तुमने कहा कि नहीं मेरे पास, जब मैंने दावा किया है तो मेरे पास दलील है। जब कोई दावा पेश करता है तो उसके पास दलील रहती है। यही तो बात है, वहाबी, देवबंदी, रावजी, खारजी, इनके दावों के ऊपर इनके पास कोई दलील कभी होती ही नहीं है, ये सिर्फ हुज्जत बहस करते हैं। तुमने अपना दावा पेश कर दिया है, सोचो जब तुम अपने दावे पे तनकी नहीं दे पा रहे हो, ये बात नहीं समझा पा रहे हो मुझे कि किसी अगर नेक की इबादत करी जाए तो शैतान की कैसे होगी, तुम यही नहीं समझा पा रहे हो, तनकी का जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो दलील का कहां से दोगे? समझ रहे हो? यही तुम मक्कारी कर रहे हो, तो दलील तुम्हारे पास क्या खाक होगी? दलील तो होगी ही नहीं। सुनो पहले, ना हुआ नहीं है।
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ کیا کام کریں، آپ مجھے یہ بات سمجھائیں کہ جیسے کہ مان لو اگر نیک لوگوں کی عبادت کری جا رہی ہے تو شیطان کی ہو رہی ہے، وہ کیسے ایسا کیسے ہو جا رہا ہے، جبکہ ہم مطلب مان لو اگر پانی پیتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں دودھ نہیں جاتا، پانی ہی جاتا ہے۔ کیلا کھاتے ہیں تو آم نہیں جاتا، آم کھاتے کیلا نہیں جاتا۔ اور ایک منٹ مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ نیک لوگوں کو پوج رہے ہیں تو الزام شیطان پہ لگ رہا ہے جا کے، ہو گیا اس سے شیطان کا کیا لینا دینا؟ ہو گیا چلیے ہاں یہ بات مجھے سمجھاؤ، یہ بھائی جان دعوے پہ دیکھیے، تو میرا تھوڑا سا کیا لینا وضاحت کرو۔ دینا ہے شیطان کا کیا، کس کا کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا نا، میں تھوڑی نا بتانے کے لیے بیٹھا ہوں بھائی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بات سے ڈر کیوں رہے؟ میں بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بولا آم کیلا بن جائے، اللہ تعالیٰ کی یہ کیا آم کیلا بن جائے، اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ امن بھائی دیکھیے ہاں دیکھیے ان کے دعوے میں کسبے باری تالا آ رہا ہے۔ بالکل بالکل، اللہ پہ جھوٹ بولا انہوں نے بہت بڑا۔ یار میں اگر اپنی بات پر جھوٹا ہوں تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ مجھے قتل کر دینا۔ ارے تم واجب القتل ہو تم یار، لیکن تمہیں کر نہیں رہے، سمجھ لو۔ یوسف بھائی بات نہیں کرے گا، دیکھو چلو بولنے دو بولنے دو۔ بولو۔ کہاں بولنے دو یار، میں بول رہا ہوں کہ آپ مجھے کتنا بڑھیا کیسے بات دیکھے، ہاں کہاں ناصر، ہلو ہلو، دیکھیے امن بھائی، اگر آپ کو جواب دعویٰ آپ کے پاس ہے تو آپ پیش کریں، ورنہ ڈگر کی زندگی گزاریں اور اسی طرح کا حرکت کریں۔ میں آپ پر کوئی دیکھو میں غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں، آپ کے پاس میری جو دعویٰ ہے، آپ کے پاس اس کا جواب دعویٰ ہے کہ آپ اس میں میرے دعوے کو مانتے ہو یا میرے دعوے کے منکر ہو۔ آپ مجھ سے تنقیحات مانگ رہے ہو، میں نے کہہ دیا کہ ایسا ہی ہے، جو ایسا کرے گا وہ ایسا ہی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کو میں باری تعالیٰ سے ثابت کروں گا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکم سے ثابت کروں گا، یہ میرے ذمہ ہے نا۔ اچھا آپ مجھے اپنا جواب دعویٰ پیش کر دیں کہ نہیں ایسا کرنے سے ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کرنے سے ایسا نہیں ہوگا، تو میں بولوں گا بھیا ٹھیک ہے آ جائیں اب آپ۔ ہو گیا، چلو دیکھو اس کا تو میں انکار کر ہی رہا ہوں نا، کہ میں تو یہ کہہ ہی رہا ہوں کہ بھئی ہم پانی پیئیں گے تو دودھ پیٹ میں تھوڑے جائے گا، کوئی پتھر کو پوجے گا۔ سن لو نا، سن لو بھائی، سن لو بھیا، سن لو ڈال دوں گا اور کہوں گا کہ یہ اس بریلوی کے پاس سن لو بھیا، سن لو، بھاگو نہیں شارق، بھاگو نہیں، میں بات نہیں کروں گا، شارق بھاگو نہیں۔ جب انسان وہاں بھی پھنستا ہے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم بھاگنے نہیں دیتے، ہم بھاگنے نہیں دیتے۔ ارے تمہیں یہ تک نہیں پتا کہ نیک لوگوں کو پوجا جائے گا تو شیطان کی پوجا کہاں سے ہو جائے گی بے وقوف انسان۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، سنو پہلے، ارے تم کیا اللہ رب العزت پہ جھوٹ باندھ رہے ہو اور اپنے جو تنقید چل رہی ہے اس پہ سے بھاگ رہے ہو؟ ارے جھوٹ ہوگا تو ریکارڈنگ خاموش رہو، خاموش رہو۔ ہاں تو میں تو اس چیز کا انکاری ہوں ہی، کیونکہ میں تو یہ کہہ ہی رہا ہوں کہ بھئی اگر کوئی پتھر کو پوجے گا تو پتھر کی عبادت ہوگی۔ خاموش رہو، خاموش، بالکل پتھر کو پوجے، خاموش رہو، پتھر کو پوجے گا تو بھئی انسان کی نہیں ہوگی، انسان کو پوجے گا تو پتھر کی نہیں ہوگی، دودھ پیے گا تو پانی نہیں جائے گا، پانی پیے گا تو دودھ نہیں جائے گا۔ تو میں تو اس کا انکاری ہوں ہی، تم اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے تم، اور کر ہی نہیں پا رہے ہو کہ بھئی یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ مجھ سے کہہ رہے ہو کہ نہیں دعویٰ پیش کرو، جواب دعویٰ پیش کرو، تنقید مت لو مجھ سے۔ چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تنقید نہیں لیتا، تم پہ آسانی کر دیتا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ پکارتے تھے تو شیاطین ہی کو پکارتے تھے، ٹھیک ہے، شیطان کو نا، شیطان ہی کو پکارتے تھے۔ سن لو بھیا کیا بات ہے، کیا بات کیا ہے، کیا بات کیا ہے؟ شیطان کو پکارتے، بدھ کو نہیں پکارتے۔ یہ کون سی بات ہے، شیطان کو پکارتے بدھ کو نہیں پکارتے؟ شیطان بدھ تھا، ہاں شیطان ہی بدھ تھا، شیطان بدھ تھا، بدھ کا، شیطان کا بدھ بنائے ہوئے تھے وہ۔ سنو پہلے، خاموش رہو پہلے، خاموش رہو پہلے، خاموش۔ وہ شیاطین ہی کا بدھ بنائے ہوئے تھے، اسی کو پکارتے تھے، انہی کو پوچھتے تھے، ٹھیک ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ خاموش رہو بھائی، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش ہو جاؤ، سنو تو کیا بات ہے، مطلب کسی نے مرچی برچی لگا دی ہے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو مشرکین مکہ تھے جب وہ پکارتے تھے تو شیاطین ہی کو پکارتے تھے، اور جو بدھ بنائے ہوئے تھے انہوں نے وہ ان شیاطین کے بنائے ہوئے تھے، وہ بدھ جن کو وہ پکارتے تھے۔ ایک منٹ خاموش رہو، پورا دعویٰ تو پیش کرنے تو، اتنا مطلب جھلا کاہے رہے ہو بھائی، مطلب توے ہوئے پہ بیٹھے ہو کیا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ جن کو پکارتے تھے، میرے الفاظ پہ غور کریں یوسف بھائی، جن کو وہ
पुकारते थे तो वो शयातीन ही को पुकारते थे और उन्हीं के उन्होंने बुत बनाए हुए थे और उन्हीं को पुकारते थे। किनको? जिनको वो पुकारते थे। मैं मतलब बुतों के मुतलकन रंग बुत में की बात शैतान नहीं को कर रहा। पुकारते थे। हाँ, मैं मुतलकन बुतों की बात नहीं कर रहा हूँ कि तमाम बुत उनके वो शयातीन ही के थे। मैं ये कह रहा हूँ जिनको वो पुकारते थे वो बुत जो थे वो शयातीन के बनाए हुए थे। ठीक है, और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह दलील है। ये मेरा दावा है कि वो जो पुकारते थे वो नेक लोगों को पुकारते ही नहीं थे और नेक लोगों की इबादत ही नहीं करते थे। शारिक का दावा ये है कि वो नेक लोगों की इबादत करते थे और अल्लाह उसको शैतान की इबादत कर मैं देता था। तनकी लेना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ, लो तनकी। चलो, आपने कहा कि वो मुतलकन बुत को नहीं पुकारते थे, ना, ठीक है? हाँ, मुतलकन मतलब एक बुत को बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत बनाया, उसको नहीं पुकारा। ना ना ना, आया ही नहीं कुरान हदीस में। मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो बुत बनाया था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारते थे। ना ना, नहीं पुकारते थे, कहीं आया लात ही का नहीं बुत ऐसा। बनाया तो ठीक है, तो भाई लात का बुत बनाया तो लात को नहीं पुकारते थे। हाँ, उनको सब पुकारते थे वो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं पुकार। ना ना ना, आया ही नहीं कुरान और हदीस में कहीं पे। हाँ, ये तो मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बुत किस लिए बनाया था उन्होंने? तुम बताओगे वो तो। मतलब हदीस में आया है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब जो खाने काबा से बुत को निकाला था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम का बुत था, बुखारी के हदीस है। हाँ, तो उसमें उन्होंने बुत किस लिए बनाया था? कहीं आया ही नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस्माइल अलैहिस्सलाम के बुत को वो पुकारते थे। और फिर कहीं बनाया तो हदीस, किस लिए सुनो वो? पहले, अभी जैसे कि सुनो, बुत किस मैं लिए बता बनाया? रहा हूँ ना, जवाब ले लो ना आराम से। कुरान और हदीस में कहीं आया ही नहीं कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुत को पुकारते थे। जैसे कि मान लो कि एक गैर मुस्लिम हिंदू होता है, उसके घर के अंदर शाहरुख खान, सलमान खान की भी फोटो होती है और उसके बुत की भी फोटो होती है जो कि मूर्ति की शक्ल में होती है। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, जवाब ले लो आराम से। भाई शाहरुख खान, सलमान खान की भी फोटो होती है उसके कमरे में, बुत की भी होती है। तो अब भाइयों ये बताओ, वो जो हिंदू होता है कि वो बुत को पुकारता है कि शाहरुख खान, सलमान खान को पुकारता है? हो गया, हो गया। मतलब वो उन्होंने श्री इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम का स्टेचू ऐसे ही लगा दिया था। हाँ, या तारीख में और कुछ आया ही काम नहीं नहीं कि उन्होंने करवाते थे। कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारा हो। मैंने और कुछ काम नहीं ना था उनका उनसे। अरे भाई ना, आया ही नहीं ना, तो मैं कैसे कह दूं? अरे तो आप झूठ बोलो थोड़ी ना बोलूंगा भाई कि तुम्हारी नहीं तरह। आया है और कुछ काम नहीं था। अरे भाई कुछ होता तो आता हदीसों में, आया ही नहीं। हाँ, तो आप बोलो ना भाई कि उन्होंने ऐसे ही स्टेचू लगा दिया था, कुछ काम का स्टेचू नहीं था, ऐसे ही लगा हुआ अगर था। करते तो हदीसों में आता और हम तुम्हें बताते। तो भैया आप बोलो ना आया ही भाई नहीं कि तो हदीसों बता में ही नहीं नहीं रहा। आया है, हदीसों में नहीं आया है, उनका स्टेचू ऐसे ही खड़ा था। हाँ, ऐसे ही खड़ा था, बस ये आया है हदीसों में, ये नहीं आया कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारते थे। नहीं, ठीक है, तो वो जो है हदीस में आया है कि वो स्टेचू ऐसे ही खड़े थे, उनको बेमकसद था। ऐसे ही पुकारते थे, कुछ नहीं पुकारते थे उनको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारते थे। अरे बेमकसद था ना। अरे अब ये बेमकसद था कि पैसों में था कि कौन सा कारोबार कर रहे थे, ये तो उनको पता है, मुझे क्या पता। कुरान और हदीस में कहीं आया ही नहीं कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुत को पुकारते थे। जैसे कि ये गैर मुस्लिम के घर में सलमान खान, शाहरुख खान का बुत हो या वो मूर्ति बना के रखें या फिर उसको, सुन लो पहले, उसका फोटो बना के रखें फ्रेम में, तो वो शाहरुख खान, सलमान खान को पुकारते नहीं है, वो पुकारते अपने बुत की को है। सलमान खान और सारे मैं, हाँ देखो, बेबसी की हंसी, यूसुफ भाई इसने कहा है, सुनो, बेबसी की हंसी हंस रहा है, इसके पास कोई दलील ही नहीं है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो पुकारते थे। मैं कसम बता रहा हूं कि पूरी वहाबियत को चैलेंज करके कि कोई एक दलील ला दे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो पुकारते थे। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो छोड़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी एक दलील में भी, कुरान और हदीस में कहीं भी ये आया हो कि मेरे नेक बंदों को ये पुकारते, एक दलील ऐसी ला के बता दे, कोई भी वहाबी उठ के आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक कोई नहीं ला दलील। सकता। शारिक भागा क्या? भाग गया। पर देखो, कह रहा था कॉल काट के नहीं भागेगा, अब खुद ही भाग गया। यूसुफ भाई, हाँ ये देखें, भाग गया। यूसुफ भाई, ये कुरान शरीफ की आयत है, ठीक है? इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, सूरा की आयत नंबर 94, इरशाद फरमाता है, तो वो और गुमराह यानी बुत और बुत परस्त औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे, ठीक है? अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है यानी कि बुत और बुत परस्त, यानी कि जो ये परस्तिश करने वाले हैं ये भी और जिनको पूजा जा रहा है ये, अल्लाह इन दोनों को जहन्नम में डाल देगा। तो अब मुझे ये बताओ, ये कह रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारते थे,
ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब वो पुकारते थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परस्तिश हो गई, तो यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उनको और उनको दोनों को डाल देगा। हम नबी अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं तो ये लोग कहते हैं कि तुम उनकी इबादत कर रहे हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है ये और वो गुमराह, यानी कि ये जो जिनको पूजते हैं और जिनको पूजा जा रहा है, तो इन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत औंधे मुंह दोज़ख में डाल देगा। ये हाँ, अरबी में तो बुत के अल्फाज नहीं है, अरबी में ये है ये जिसकी इबादत करते हैं वो और ये इबादत करने वाले डाल दिया जाएगा दोज़ख के अंदर। तो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाला जाएगा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बकौल भागो मत, शारिक भाग क्यों रहा है भाई? रुको नहीं, भाग क्यों रहा है? रुको बताओ, एक एक लोग बोलने दो। मुझे ये बताओ शारिक कि वो बुतों को पुकारते थे, वो नेक लोगों को पुकारते थे और वो शैतान की इबादत बन जाती थी, ये कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट है? अच्छा एक बात बताओ, सुनो तो पूछो। तुम्हारा दो दावा इसमें आया कि नेक लोगों को वो नहीं पुकारते, वो बुत को पुकारते और बुत शैतान था, और मैंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो बुत था क्या वो शैतान था? उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान समझा? तुमने कहा नहीं वो सलमान खान और शाहरुख खान जैसे नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा था अपने दावे में, सुनो मैंने दावे में पहले ही वजाहत कर दी थी कि मैं तमाम बुतों के बारे में नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, सुनो पहले, मैंने कहा सुनो पहले, इधर उधर मत भागो, हम भागने नहीं देते वहाबियों को। मैं खामोश रहो। मैंने कहा था कि ये मुशरिकीन मक्का जिनको पुकारते हैं तो ये शयातीन को पुकारते हैं और उन शयातीन के इन्होंने बुत बनाए थे जिनको पुकारते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जिन जिन के बुत थे वो शयातीन थे माज़अल्लाह। सुनो, तो ये जिन को पुकारते, हाँ बिल्कुल शैतान था, हाँ शैतान था। तो अब जिनको ये दलील मेरे जिम्मे, भैया खामोश तो रहे, क्या दिक्कत है? तबे पे बैठा है क्या? गरम तबे पे बैठा है क्या? यूसुफ भाई गरम तबे पे बैठ के आया है, बोलती आराम से बात करो, दोनों लोग अपने हल्लू थांबा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि जिनको ये पुकारते हैं वो बुत, उनके बुत इन लोगों ने बनाए थे शयातीन के, मुतलकन बुतों को नहीं कहा था मैंने कि सारे बुत शयातीन के थे माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जिनको ये पुकारा करते थे वो शयातीन के बुत थे। तो तू कह रहा है कि नहीं ये नेक लोगों को पुकारते थे, तो तेरा कहने का मतलब ये हुआ यानी लात उज़्ज़ा और वो हुबल मनात ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदे थे क्योंकि ये लोग इन्हीं को पुकारते हैं। मैं कह रहा हूँ ये शयातीन थे, तू कह रहा है ये नेक थे, और फिर तू उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत पे एक झूठ और बोल रहा है कि नहीं जब वो ये नेक लोगों को पुकारते थे उनकी इबादत करते थे तो ये इबादत जाके शैतान की हो जाती थी। ये बात अल्लाह ने कहा। दुनिया में ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो अपने पापा को मदद के लिए बुला रहे हैं तो वो जाके हमारे भाई की हो जा रही है या हम दूध पी रहे हैं तो पानी जा रहा है पेट में, या फिर हम पत्थर की इबादत करें कोई तो वो जाके हो जा रही है घर की, दरख्त की, इंसानों की। सारे इस चीज की अब मुझे दलील दे दे कि वो नेक लोग, तूने भी कहा था ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि नेक को पुकार रहे हैं तो इबादत शैतान की हो रही है, इसकी दलील दे मुझे। ये बात अल्लाह ने कहाँ कही है? कहाँ कही है वो आयत पर? सामने देखिए सबसे पहली बात ये है कि इन्होंने कहा कि वो कुछ बुत को बना के पुकारते और बाकी बुत को शाहरुख खान और सलमान खान जैसे समझते, ठीक है ना भाई? ना नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा फिर से कुछ झूठ बोल रहा है। फिर से रिपीट करो, शाहरुख खान हाँ सुनो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने ये कहा कि शारिक वहाबी ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो उनका बुत बना के पुकारते थे। मैंने इस पे चैलेंज किया कि पूरी वहाबियत को नंगा पुंगा खुला एकदम बरहना चैलेंज है कि एक दलील वो ला के दे दे मुझे कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बुत बना के वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारते थे। एक दलील ला के दे दे कुरान शरीफ से और हदीस शरीफ से या किसी आइमा इकराम के कॉल से ही दे दे भैया। ये तो अब सुनो, मैंने ये कहा तो फिर ये कह रहा तो फिर वो बुत क्यों बनाया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का? तो मैंने ये कहा कि भाई जैसे कि गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम होता है, जैसे कोई हिंदू होता है तो उसके घर के अंदर मूर्तियां रखी होती हैं, तो उन मूर्तियों के एट साइड में सलमान खान या शाहरुख खान की भी वो फोटो बनी होती है, वो भी एक बुत ही होता है। तो अब ये बताओ क्या वो शाहरुख सलमान खान की फोटो को पुकारता है कि सलमान खान मेरी मदद करो, शाहरुख खान मेरी मदद करो? वो पुकारता
उन्हीं को है जिनको वो खुदा समझता है, यानी कि जो उसके बुत होते हैं। हालांकि जो वो एड्स शैतान ऐप को पे खुदा जो समझता था ना। शाहरुख और सलमान खान के बुत बने हुए हैं तस्वीर की अरे शक्ल में, उन्हें नहीं शैतान को पुकारता। खुदा समझाना उसने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल मैंने इस तरीके से अल्लाह। समझाई थी मुशरिकीन मक्का के यहाँ क्या मसला था। तो चलो आपको ये हो दलील गया देनी है हो दो, गया हो गया, रुक सुन जा, ले, हो गया हो गया, अरे हो बात गया, रुक जा, मुकम्मल हो रही है, हो लास्ट गया, बात रुक जा, सुन ले, हो गया, बहुत बोल दिया, अरे दलील 5 दे, मिनट से बात कर रहे हो यार, रुको सुन तो ले, सही यार, हो गया। अब तो दलील दे कि अरे मुशरिक, हो सुन गया, तो ले, रुको अब रुको, तुझे दलील देनी है कि वो सामने नेक कराम लोगों को देखे, अरे पुकारते हो थे, गया, शैतान रुक की जा, इबादत बोलने होती दो, थी, बहुत शाहरुख और खान इब्राहिम सलमान खान, अलैहिस्सलाम को वो पुकारते। ये 2 दलीलें अरे दे। शाहरुख सलमान खान, रुक जाओ, रिकॉर्डिंग में यही मैं लिख के यही भेजूंगा, शाहरुख सलमान खान, रुको तो। हाँ सामने जल्दी कराम दलील दो। देखें, सामने कराम देखें, इसने कहा कि बुत को उन्होंने सिर्फ शाहरुख खान और सलमान खान टाइप का बना दिया था, जैसे ही हिंदू जो है शाहरुख खान सलमान खान का बुत शाहरुख रखता खान है, सलमान खान फोटो टाइप रखता का है, नहीं बनाया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी माजल्ला शाहरुख खान सलमान टाइप के थे, माज़अल्लाह माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, ये देखो कहाँ अस्तगफिरुल्लाह। से कहाँ चलिए, लेकर कोई के जा बात रहा नहीं, है, कोई बात नहीं, अरे मत ये बोलो, वहां मेरे भी टर्म कहाँ पे बोलो, लेकर के जा रहा है। अरे अपने टर्म में बोलना, उधर मत भाग, अरे रुको टॉपिक रुको पे अपने, बात कर, टॉपिक पे बात कर, तो मैं अच्छा खामोश रुको रहूंगा। रुको रुको, तुम शाहरुख टॉपिक खान पे सलमान उधर क्यों खान भाग बोलो रहा है कि तो मैं उधर टॉपिक पर लेके जा बात है, रहा हूँ। मैं बोलूँ तो टॉपिक पर बात नहीं है, वो यूसुफ शाहरुख भाई, खान, रुक मैंने जाओ। तो इसकी बात का जवाब दिया, ये अरे कहाँ रुको भाग रहा रुको, है। यूसुफ भाई ये बोलने ये नहीं ने दे रहा, टॉपिक ही चाहता हूँ मैं चेंज अभी कर दिया रिकॉर्डिंग की, कि बोलने ये नहीं दे इब्राहिम रहा, ये रुको अलैहिस्सलाम को रुको शाहरुख रुको भाई, सलमान खान से मैं मिसाल चाहता हूँ दे रहा रिकॉर्डिंग, है। दलील माज़अल्लाह शारिक से अस्तगफिरुल्लाह। दलील मांगो अब। दलील दे शारिक, दलील, वो तूने जो अल्लाह रब्बुल इज्जत पे झूठ बोला था उसकी दलील भाग दे, गया। चल भाग गया। तो इनकी यही औकातें होती हैं यूसुफ भाई। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अवाम इसको सुन के फैसला कर लेगी कि मतलब ये वहाबी कितने बड़े मक्कार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सामईन हज़रात, आपने जैसा कि इस रिकॉर्डिंग को सुना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल गया होगा कि ये वहाबी कितने बड़े मक्कार होते हैं। इसने लास्ट तक कोई दलील नहीं दी। खैर, जो हमारा दावा था उसको एक बार और सही से समझ लें कि आगे को कोई वहाबी मक्कारी अगर करे आपके सामने तो अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ जाएं। दावा ये था कि मुशरिकीन मक्का जो बुतों को पूजते थे उनके बारे में हमने ये दावा किया था कि वो नेक लोगों की इबादत नहीं करते थे और ना ही उनको पुकारते थे। किन के बारे में ये दावा किया हमने? मुशरिकीन मक्का के बारे में किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में या हदीस शरीफ में कहीं भी नहीं आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में नहीं बताया कि वो मुशरिकीन मक्का जो थे वो नेक लोगों को पुकारते थे या उनकी इबादत करते थे। ये मुशरिकीन मक्का के ऊपर बात चल रही थी हमारी, ना कि यहूद व नसारा के ऊपर, और ना ही जो अरब के और कबीले थे जो शिरक करते थे ना उनके ऊपर। ये सिर्फ मुशरिकीन मक्का के ऊपर बात चल रही थी कि कल कोई वहाबी आपके सामने कोई आयत करीमा पेश करे तो आपको लगे कि यहाँ तो ये ज़िक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों को पुकारा जा रहा है, तो उसके अंदर वो अरब के दूसरे कबीले या यहूद व नसारा के बारे में आयत करीमा नाजिल रही है। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं वो मुशरिकीन मक्का की कर रहे हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दीगर अरब के कबीले थे या यहूद व नसारा थे तो उनके बारे में भी कहीं पर भी ये नहीं कहा कि नेक लोगों को पुकारना यही शिरक है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जबकि शिरक तो अक़ीदे से होता है और अक़ीदा उन लोगों का ये रहता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये जो लोग हैं ये शरीक हैं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम हो गए, उज़ैर अलैहिस्सलाम हो गए, यहूद और नसारा इनको खुदा का शरीक ठहराते थे और कहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये बेटे हैं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं अक़ाइद को शिरकिया कहा है, पुकारने को कहीं भी शिरक नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ में और हदीस शरीफ में कहीं भी नहीं आया। तो इनकी मक्कारियों से अल्हम्दुलिल्लाह आप बचें और इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि जब भी कोई वहाबी आपके सामने कोई आयत करीमा पेश करे तो एकदम से ये ना सोचे कि इसने आयत करीमा पेश की है कुरान शरीफ की तो आप उसको सुन करके ये सोचे कि ये वहाबी सही कह रहा है। उसकी तहकीक करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये किन से कह रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अरब के और कबीले थे जो जिन्नों को फ़रिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा बेटी शरीक ठहराते थे, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये शिरक करते थे। यहूद व नसारा के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेटा बेटी तस्लीम करते हैं, ये चीज़ भी शिरक है वाज़ेह। लेकिन इन चीज़ों को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिरक कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक कहा,
لیکن اس چیز کو کہیں بھی شرک نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی اللہ رب العزت کے نیک بندے کو پکارے اللہ رب العزت کی وہ عطا سے دیتے ہیں، یہ عقیدہ رکھ کے کہیں بھی شرک نہیں کہا گیا۔ تو جب بھی وہابی آپ کے سامنے کوئی آیت کریمہ پیش کریں تو آپ الحمدللہ پہلے اس کی تحقیق کریں، پھر الحمدللہ اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔